Now see here, water of crystallization, our next point. In that they have given one activity. See there, take some crystals of blue vitriol in two test tubes. In first, add some water in one test tube and shake it. After that, see what they are telling. What did you see? What is the color of solution formed? Heat the other test tube on low flame of a burner. What did you see? What change did occur in the color of blue vitriol? And last question is that what did you see in the upper part of the test tube? अब ये सभी क्वेश्चन के आंसर्स हमें चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे. उस डेमो में देखो. नाउ सी हियर, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. Copper sulfate crystal means blue vitriol. For that, spirit lamp we have taken, test tube we have taken. After that, test tube holder, test tube stand, watch glass, spatula, dropper, glass rod. Now, before that starting, we will take some crystals with the help of spatula in a test tube. Copper sulfate means blue vitriol. Now we have taken these crystals in one test tube. After that, see the color. Before, if we see the color of copper sulfate, that is blue vitriol, is blue color. Now we will hold it with the holder, and after that we will light a spirit lamp with the help of matchbox. Now we will hold that test tube on that flame and observe it carefully. Hit the copper sulfate crystals till the color disappears. Now see, whatever the color of the copper sulfate was there, blue color, that is getting disappear. White crystals or precipitates we are getting, and at the top of the test tube, if we see some water droplets, we are able to see. See the water droplets on the top of the test tube. Now see here, the color starts disappearing of the blue vitriol. Anhydrous copper sulfate we are obtaining at the bottom. Anhydrous means absence of water, means no water is there, only CuSO4 is there. Now after 10 minutes, what we have to do, whatever that white precipitates are there, with the help of dropper we will take some water and pour in it. See, again the color of copper sulfate we are getting. Now see, in this experiment, on heating, the crystalline structure of blue vitriol breaks down to form a colorless powder and water comes out. This water was a part of crystalline structure of blue vitriol. Now we will see the chemical reaction of copper sulfate after heating. यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, कॉपर सल्फेट मीन्स ब्लू विट्रॉल, उसका कलर ब्लू था. ओके, आफ्टर रिएक्शन मीन्स रिएक्शन क्या किया हमने, उसको हीट किया था. तो हीट करने के बाद हमें क्या मिला, कॉपर सल्फेट जो वाइट प्रेसिपिटेट्स था, हीट करने के बाद हमें टेस्ट ट्यूब में क्या मिला, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट्स मिला और उसके टॉप में कुछ ड्रॉपलेट्स दिखे थे. वो क्या था, वाटर था, ये वाला वाटर. ओके, नाउ इस एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, वो क्या है देखेंगे. टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू विट्रॉल इन 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए थे हमने. ऐड सम वाटर इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट.
एक में क्या करने का, वाटर ऐड करने के बाद उसको शेक करने का, तो कल उसको वो क्या दिखेगा हमें, जो कलर है ब्लू कलर हमें दिखेगा। उसके बाद देखो व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म, जो कलर फॉर्म हुआ था सॉल्यूशन फॉर्म हुआ था उसका कलर क्या है, ब्लू ही रहेगा। अभी नेक्स्ट वन देखो, हीट द अदर टेस्ट ट्यूब ऑन द लो फ्लेम ऑफ अ बर्नर, व्हाट डिड यू सी। ये हमने डेमो में देखा था कि उस सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हीट करने के बाद हमें क्या मिला था, कुछ टाइम बाद एट द बॉटम साइड जो ब्लू विट्रोल था उसका कलर चेंज होके वाइट मिला था और टॉप में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमें मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, व्हाट चेंज डिड ऑकर इन द कलर ऑफ ब्लू विट्रोल, उसका कलर क्या हुआ, ब्लू से वाइट चेंज हो गया। व्हाट डिड यू सी इन द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने कि जो अपर पार्ट था टेस्ट ट्यूब का उसमें हमने क्या देखा था, यस करेक्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स हमने देखे थे। तो बेसिकली हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, ऑन हीटिंग द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू विट्रोल breaks down to form a colorless powder and water comes out. This water was a part of crystal structure of blue vitriol. It is also called as water of crystallization. Always remember. On adding water to the white powder, a solution was formed which had the same color as the solution in the first test tube. वाटर ऐड करने के बाद दोबारा हमें क्या मिला, वही कलर मिला जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में था वैसा। फ्रॉम दिस वी कम टू नो दैट नो केमिकल चेंज हैड ऑकर इन द क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू विट्रोल ड्यू टू हीटिंग, लूजिंग वाटर ऑन हीटिंग ब्लू विट्रोल, breaking down of crystal structure, losing blue color and regaining blue color on adding water are all parts of chemical change. ये सब क्या है, एक केमिकल चेंज का क्या है, एक पार्ट है। नेक्स्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है अगेन उसके नीचे वो पफ्ड एल्यूम के लिए है। ओके, वो सिमिलर वैसा ही एक्सपेरिमेंट है। ओके, अब सेकेंड वाला जो एक्टिविटी है वो सिमिलर वे है, वो देखेंगे हम। एपरेटस क्या है, एवापोरेटिंग डिश, बुशेंस बर्नर, ट्रिपॉइड स्टैंड, वायर गेज एक्सेट्रा, और केमिकल क्या है, एल्यूम। एल्यूम यानी क्या, उसको क्या बोलते हैं, तुरटी बोलते हैं, तुरटी। ओके, वाटर क्लीनिंग का काम करता है वो। हम वाटर क्लीनिंग के लिए पहले क्या करते थे, इसका इस्तेमाल करते थे, एल्यूम का। प्रोसीजर देखो, टेक अ स्मॉल स्टोन ऑफ एल्यूम इन द एवापोरेटिंग डिश, छोटा सा पत्थर जैसा क्या करना है हमें, एल्यूम का एक पीस लेना है। कीप द डिश ऑन अ ट्रिपॉइड स्टैंड एंड हीट इट विद द हेल्प ऑफ बर्नर, बर्नर के मदद से हमें उसको क्या करना है, हीट करना है। नेक्स्ट वन देखो, व्हाट डिड यू सी इन द डिस्क एंड व्हाट इज मीन बाय पफ्ड एल्यूम। डिस्क में हमें क्या देखा कि वो डिस्क में जब हम हीट करते हैं उसको तो उसके कुछ ऐसा नॉइजी साउंड आता है और उसको क्या कहते हैं, पफ्ड एल्यूम। पफ्ड मीन्स क्या होता है, एक क्विक ब्लास्ट जैसा, छोटा सा ब्लास्ट जो होते हैं वैसा नॉइज आता है। नेक्स्ट वन देखो, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, और आयनिक कंपाउंड्स है वो कैसे रहते हैं, क्रिस्टलाइन रहते हैं। दिस क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ आयन्स, और वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किसकी वजह से, वो डेफिनाइट जो अरेंजमेंट होती है आयन्स के बीच उसकी वजह से होते हैं। इन द क्रिस्टल्स ऑफ सम कंपाउंड्स वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो डेफिनाइट इंक्लूडेड इन दिस अरेंजमेंट, और उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, ऐड होते हैं। हमने देखा होगा नमक हमें कैसे मिलता है, समुंदर से। ओके, जो समुंदर का पानी होता है उसमें से हम क्या करते हैं, उसको इवापोरेट करके, ओके, फिर हमें क्या मिलता है, नमक मिलता है। तो जब समुंदर में होता है तब क्या होता है, उसमें कुछ पानी होता है, वो पानी इवापोरेट होने के बाद हमें खाली सॉल्ट मिलता है। वैसे ही ये कुछ क्रिस्टल्स है उनके बारे में भी ऐसा ही है।
दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसको ही क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज present in a definite proportion of chemical formulas of the compound, and it includes in the chemical formula as shown below। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट, water of crystallization of some chemicals and their chemical formulas। कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसमें वाटर होता है। अभी यहाँ पे पहला वाला जो देखा वो क्या है, क्रिस्टलाइन ब्लू विटेरॉल। ब्लू विटेरॉल यानी CuSO4 5H2O। 5H2O यानी उसमें वाटर होता है कुछ अमाउंट। हीट करने के बाद वो क्या होता है, वो वाटर इवापोरेट हो जाता है। टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने देखा था वैसे ही। सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट, उसको क्या कहते हैं, ग्रीन विटेरॉल भी कहते हैं। ओके, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, FeSO4 7H2O। 7H2O यानी इसमें भी कुछ हद तक क्या होता है, पानी रहता है। ये जितने भी है यहाँ पे चार दिए, वो चारों में भी देखा तो वो क्या है, लास्ट में देखा तो वाटर का प्रिसिपिटेशंस है उसमें। नाउ नेक्स्ट वन सी, थर्ड वन क्या है, क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है Na2CO3 10H2O। इसमें भी वाटर का प्रिसिपिटेशन है। और फोर्थ वन देखा तो वो क्या है, क्रिस्टलाइन एल्यूम। एल्यूम हमने देखा मराठी में क्या बोलते हैं, तुरटी बोलते हैं उसको। K2SO4 Al2SO4 24H2O उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड। ये चारों में भी देखा तो क्या है, वाटर का क्या है, कुछ हद तक क्या है, प्रिसिपिटेशंस है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। अंडरस्टैंड।